फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे विंडो टू वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास 8 का टॉपिक 1.2 से 1.3 तक, मतलब इंक्लूडिंग 1.3। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने 1.1 को कवर किया था, तो इस बार हम 1.2 और 1.3 को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1.2 The river system. The beginning of the river system is called source or headwaters. जो रिवर सिस्टम के स्टार्ट होते हैं ना, उसको सोर्स या हेड वाटर्स कहते हैं। ये याद रखना है, आपका फिल इन द ब्लैंक आएगा मतलब कंफर्म है, ये आ सकता है। The source may be melting glacier, melting snow, a lake with outflowing stream, or springing oozing out of the ground. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रिवर सिस्टम स्टार्ट किस चीज से हो सकता है। ठीक है, तो मेल्टिंग स्नो से, ग्लेशियर के पिघलने से, स्टीम के गुजरने से, स्प्रिंग्स के निकलने से, स्प्रिंग फूटने से, इस वजह से। From its source, a river flows down the hill due to force of gravity. As a small stream, precipitation and groundwater adds to the river flow. It also fed by other streams called tributaries. ये आपने याद रखना है, ट्राइब्यूटरीज की ये डेफिनेशन आ गई है। Together, a river and its tributaries make a river system. A river system is also called a drainage basin or watershed. ये आपकी important blank है। A river is a watershed including the river, all its tributaries, and any groundwater source in the area. ठीक है, river consist करता है कि उसकी tributaries, जो उसकी छोटी छोटी लेक्स या वो बने हुए हैं वो, और कोई भी उस जगह में ग्राउंड वाटर, जमीनी पानी की जो सोर्स होती है वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिवर इंडस फ्रॉम अ माउंटेन स्प्रिंग एंड इट्स फेड बाय ग्लेशियर रिवर्स फ्रॉम द हिमालयाज, काराकोरम, हिंदू कुश रेंजेस। ये रिवर इंडस के बारे में ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ। Its left bank tributaries at Lakht in Zanskar River and in plains of Punjab is Panjad River, which is formed with confluence of 5 rivers named Chenab, Jhelum, Ravi, Bees, and Sutlej River. Its right bank tributaries are mainly Shyok, Gilgit, Kabul, कुराम एंड गोमल रिवर्स। ठीक है, अब इसमें रिवर इंडस का बताया कि माउंटेन की स्प्रिंग से निकलता है, ग्लेशियर्स और रिवर्स इसको बाकी मिलते हैं इससे। ये हिमालयाज और काराकोरम, हिंदू कुश रेंजेस से आता है। इसके लेफ्ट बैंक पे लद्दाख की ज़ंस्कर रिवर है। ठीक है, और पंजाब के रिवर्स हैं वो जो 4 रिवर्स हैं, चनाब, झेलम, 5 रिवर्स है। और राइट बैंक के पास श्यायोक, गिलगित, काबुल, कुराम एंड गोमल रिवर्स हैं। ठीक है, द एंड ऑफ रिवर इज इट्स माउथ where the river empties into another body of water. ये आपने याद रखना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब रिवर इंडस जो हमारा है वो किस पे एम्प्टी होता है? वो अरेबियन सी में एम्प्टी हो जाता है। Here's the large river empties into another body, a larger river or a lake or the ocean. 3 जगह जहाँ पे रिवर खत्म हो जाता है या उस पानी से मिल जाता है, या वो जाके एक बड़े रिवर में मिल जाता है, या किसी ओशन में मिल जाता है, या लेक में। जो रिवर इंडस है ना, वो अरेबियन सी में जाके मिल जाता है। Many of the largest rivers empties into ocean. River Indus empties into Arabian Sea. आपने याद रखना है। The energy of flowing water comes from force of gravity which pulls the water downwards. ठीक है, ये downwards आपने याद रखना है। ये आपके लिए आ सकता है कि the force of gravity
pulls water where? Downwards, upwards, yeah. The steeper the slope of the river, the faster the river moves and the more energy it has. The movement of water in river is called current. ये भी आपने याद रखना है. The current is usually strongest near the river source. कहाँ करंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है? रिवर के सोर्स पे. ठीक है. Rapid waterfalls are common to rivers, particularly near their source. The deepest part of the river bed is called channel. The channel is usually located in the middle of the river. Canal जिसको हम कहते हैं या channel जो है वो river के mid में होता है. ठीक है. और ये deepest part होता है. ठीक है. Eventually, the river flows to lower lands as the slope of its course flattens. The river cuts less deeply into the bed. Instead, it begins to wind from side to side in looping bends called meanders. The action widens river's valley. ये आपने याद रखना है. The river cuts less deeply into the bed. Instead, it begins wind flowing side to side called meanders. ये आपने याद रखना है. ठीक है. क्या होता है कि हवा और पानी ये ना रिवर की जो बाउंड्रीज होती है ना ये इसको कट करता जाता है. जब ये कट होता है तो ये बेंड्स बनने लगते हैं जिनको हम मेंडर्स कहते हैं. ठीक है. नियर द एंड ऑफ द इट्स जर्नी, मैं आपको इस रिवर की पिक्चर बाद में दिखाऊंगी ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए तो फिर हम उस पिक्चर को प्रॉपर डिस्कस करें. Near the end of its journey, the river slows as it has less energy to cut into land. देखिए ये खुद भी बता रहे हैं कि जो ये रिवर एंड पे आता है इसकी एनर्जी कम हो जाती है तो वहां पे मेंडर्स वगैरह कम हो जाते हैं. And it's no longer carry the heavy loads of sediments. Sediments पत्थर बोल्डर ये अब फिर नहीं चला सकता अपने साथ. Where the river meets the ocean or a lake, it may deposit so much sediments that a new land is formed. A delta. ठीक है. Where the river, ये आपने यहाँ से याद रखना है. Where the river meets the ocean or the lake, it deposits so much sediments that new land delta is formed, but all the rivers do not have delta. यानी कि जो इंडस डेल्टा, ये जो डेल्टा है पाकिस्तान का, ठीक है, रिवर इंडस का जो डेल्टा है, द इंडस डेल्टा, ये मतलब हर जगह डेल्टास नहीं होते. रिवर इंडस का डेल्टा है. द रिवर इंडस ends in a large fan-shaped delta in the southern area of Pakistan. The Indus Delta has extensive system of swamps, mudflats, creeks, estuaries, marshes. नहीं ये है marshes. हाँ, मैंग्रोव फॉरेस्ट. ये इंडस डेल्टा कंसिस्ट करता है. ठीक है. अब हमने डेल्टा डिस्कस किया. अब हम आते हैं एक और नई चीज पे जिसको हम कहते हैं एस्चुरी. An estuary is a primarily enclosed coastal water body where the fresh water from the streams or rivers mixes with the salt water. Estuary वहां होती है जहां streams का fresh पानी, जहां कोई नमक ना हो, वो मिल जाते हैं ocean के salty water के साथ या sea के salty water के साथ. The mix of sea water and the fresh water result in brackish water habitat, which is somewhat salty but not salty as sea water. मतलब ये ना बहुत ज्यादा salty है ना बहुत कम salty है. ठीक है. Several species of birds such as red-crowned cranes, ये आपने याद रखना है, and swans inhabit this wetlands. The Yellow River forms an estuary for instance as it reaches Bohol Sea off the coast of northern China. ये आपने याद रखना है. रेड ग्राउंड क्रेन्स आपके आ सकते हैं. अब हम आते हैं इस डायग्राम को. अब देख लें इसको थोड़ा हम इजी करके इस डायग्राम पे ले आते हैं. प्रॉपर मतलब फुल इमेज आ गई है हमारे पास. ये सोर्स है हमारा जहां से हमारा पानी बहना शुरू हुआ है. ठीक है. ये हमारा सोर्स है. ये हमारा सोर्स है. यहाँ से पानी बहना शुरू हो गया. अब ये यहाँ आता जा रहा है आता जा रहा है. आप देखें कर्व्स बन रहे हैं. इन कर्व्स को ही हम मेंडर कहते हैं. ठीक है. अब ये यहाँ पे लीव सा बने कि आप देख रहे हैं ये गैप सा मतलब मेंडर दो रास्ते बन गए हैं.
एक मेंढर का और एक सीधा रास्ता, ठीक है। फिर उसके बाद ये कोइन्फ्लुएंस है, दूसरी जगह से भी आ रहा है पानी, जॉइंट सा बन गया, ठीक है। फिर ये हमारी ट्राइब्यूटरीज है, डिफरेंट जगहों से पानी आ रहा है, ठीक है। फिर हम आते हैं रिवर पे, ये मेन रिवर है, ये वाला हमारा मेन रिवर है, ठीक है। फिर एक और चीज है जो हमने पिछली क्लास ग्रेड 7 में पढ़ा था, ऑक्सबो लेक। जब मेंढर कट जाता है रिवर से तो ऑक्सबो लेक बनता है। ये देख रहे हैं बिल्कुल रिवर से जुदा हो गए, मतलब ये बस एक लेक बन गए। फिर ये हमारी कैन चनाल कैनल है, या आप देख रहे हैं ये थोड़ी डीप भी लग रही है। फिर ये हमारी एस्चुरी है, अगर तो एस्चुरी है, ये एक इमेज में सब कुछ फिट करने की कोशिश की है। कहीं एस्चुरी बनती है, कहीं डेल्टा बनता है, ये नहीं होता मोस्टली, ये नहीं होता कि एस्चुरी और डेल्टा साथ हो, मैंने भी नहीं अभी तक सुना, ठीक है। ये एस्चुरी है, जिसमें एस्चुरी का बता रहे हैं कि अगर एस्चुरी होगी तो इस तरह, डेल्टा होगा तो आप ये जमीनी जगह देख रहे हैं, अब आपको शायद नजर आए ये जगह, ये हमारी डेल्टा की है, ठीक है। और ये हमारा मेन रिवर का माउथ है, ठीक है, ये माउथ है, पूरा माउथ है, ठीक है। ये हमारी रिवर की मेन डायग्राम को मैंने आपको डिस्कस करके दे दिया। अब हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारा, जिसको हम कहते हैं द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको हम कॉमनली कहते हैं वाटर साइकिल। 1.3 The hydrological cycle. The hydrological cycle, also known as the water cycle, is constant movement of water between Earth and its atmosphere. जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ये वाटर की मूवमेंट है, ठीक है। ये वैसे आपने याद रखना है, हाइड्रो वॉट आपको आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ वाटर साइकिल, तो आप कह सकते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या पूछ रहे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का क्या, तो आप कह देते हैं वाटर साइकिल। इस कांस्टेंट मूवमेंट, ये मूवमेंट है वाटर की बिटवीन अर्थ, उसके एटमॉस्फेयर और ये। इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मैं आपको वाटर साइकिल ही दिखा देती हूँ, ये हमने बचपन से देखी हुई है, ठीक है। ये इसको सिर्फ वर्ड्स में डिस्कस किया, ठीक है। वाटर साइकिल स्टार्ट कहाँ से होगी, फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं प्रेसिपिटेशन हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश जाएगी, बारिश जमीन के अंदर घुस जाएगी, ठीक है, जमीन में जाएगी, जमीन से वो बाहर आएगी, ठीक है, लेक्स में चली जाएगी, इनफिल्ट्रेशन ना हो तो कलेक्शन हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल रिवर्स में चली जाती है, ठीक है, तो कलेक्शन हो गई हमारी, ठीक है, हमारी कलेक्शन हो गई। अब फिर क्या होता है, हीट की वजह से, सूरज की हीट की वजह से, ठीक है, ये सारे वाटर वेपर्स बन के इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ये नहीं होता इवेपोरेट होते और फिर ट्रांसपायरेशन नहीं हो, ये नहीं होता। इवेपोरेशन का अलग प्रोसेस है, ट्रांसपायरेशन का अलग प्रोसेस है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन इनफिल्ट्रेशन के बाद होती है, ठीक है। कलेक्शन से इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन भी ऊपर जाएगी, फिर ट्रांसपायरेशन पौधों की जो साइंस में हमने पढ़ा हुआ है, ट्रांसपायरेशन करते हैं, ग्रेड 7 में हमने पढ़ा था, तो वो ट्रांसपायरेशन भी इवेपोरेशन की तरह ऊपर चली जाएगी। अब क्या होगा, ये एक बादल फॉर्म करेंगे, ठीक है, क्लाउड। फिर ये क्लाउड कंडेंस होता जाएगा और फिर ये दोबारा बरसेगा और फिर प्रेसिपिटेशन होगी और फिर ये घूमता जाएगा इस तरह, ठीक है। ये मैंने आपको वाटर साइकिल पिक्चर वाइज दिखा दी है, ठीक है। अब हम वाटर साइकिल को पढ़ जरूर लेते हैं, ठीक है। सोलर रेडिएशन causes the water to evaporate. मैं आपको कहती हूँ आप ये पूरा याद ना करें, आप ये डायग्राम याद करें और इसी को ही मद्देनजर रखते हुए आप अपने पेपर में इसके लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। Seas, lakes, river and other water bodies, plants also release water vapors as a result of process of transpiration. The water vapors rises and it's later condensed into liquid or solid state to form clouds. Then it returns to earth in a form of precipitation. Precipitation may fall in form of hail, snow, rain, drizzle या sleet. ये इस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तब भी वो प्रेसिपिटेशन ही कहलाएगी। बच्चे ये समझते हैं कि रेन ही प्रेसिपिटेशन है, नहीं, स्नो भी प्रेसिपिटेशन है, ड्रिजल भी प्रेसिपिटेशन है, स्लीट भी प्रेसिपिटेशन है, हेल भी प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। The water from the surface of earth runs downhill, reaches rivers, lakes and other water bodies. Finally, the water reaches the ocean. Some water move downwards, seeping
through the solid due to gravity and form aquifers. ठीक है, अब ये aquifere की definition दी है. Aquifer is a body of porous rock sediment or saturated with groundwater. Aquifer क्या होता है कि sediments होते हैं, ये पानी को ना ग्राउंड वाटर को सैचुरेट साफ करते हैं. ठीक है, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हैज बीन कॉन्स्टेंटली अकरिंग फॉर मिलियंस ऑफ years and has continued to replenish the supply of fresh water required for almost all living things. ठीक है, आज हमने डिस्कस किया रिवर सिस्टम, ट्राइब्यूटरीज और ऑक्सबो लेक को भी मैंने थोड़ा बता दिया. फिर हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ी, एस्चुरीज पढ़ी, डेल्टा पढ़ा, और ये मैंने आपको डायग्राम बताई है. ये आप डायग्राम पेपर के लिए भी ले सकते हैं, लेबलिंग के लिए. ठीक है, और ये प्रेसिपिटेशन, ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम, ये दोनों आपने याद रखनी है. और अगली इसी चैप्टर में आएगी रॉक साइकिल की, वो भी आपने याद रखनी है. वो बहुत कॉम्प्लेक्स दिखाई हुई है मगर वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर समझ आया होगा. प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक्स अगेन. अल्लाह हाफिज.